Hi all, can you see me? Can you all hear me? Can you see me guys? Can you all hear me? There is an echo. Hi all, hi everyone. Good to have you guys, good to have you. Okay, superb. I welcome you to welcome you all to this session guys wherein मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा जो मेरे साथ हुई जो मैंने की overall मोटा and I will make another video wherein I'll go into details that how what did I do in the last day, the JEE exam day. उसके अंदर मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, वो अलग वीडियो आएगा. So this is a generic video of my 2-year preparation and obviously the name of the video is 3 mistakes of my JEE preparation life. The name of the video is 3 mistakes of my JEE preparation life, but that doesn't really mean that I repent anything that I've done in my life, right? Just that agar ho sakta with the kind of experience that I have in teaching, with the kind of things that I've seen some of my students do and succeed as far as JEE rank is concerned. So ये अगर चीज accommodate हो जाती जो कि मैंने अपने टाइम पे नहीं की थी, so हो सकता है कि मेरा जो रैंक है जो एक्चुअली में आया था द काइंड ऑफ एग्जामिनेशन इन ऑल द एग्जामिनेशन दैट आई गेव हो सकता है इम्प्रूव हो जाता, राइट? नॉट दैट कि मैं अब तब पढ़ा नहीं रहा होता, मैं तब भी पढ़ा रहा था बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई लाइक डूइंग एंड आई गॉट प्लेस्ड इन अ कंपनी कॉल्ड ऑरेकल आफ्टर माय जेई. तो प्लेसमेंट मेरा ऑरेकल के अंदर हुआ था एंड आई वर्कड इन ऑरेकल फॉर 1 year एंड देन आई रियलाइज दैट आई थिंक I should get into teaching because teaching was and always has been my passion and I am happy so far whatever I'm doing in life, right? So the session name is 3 mistakes of my JEE preparation life, and let us start the session. For those who do not know me, I am Abhay Mahajan. I've done my engineering from IIT Roorkee. कैसे मैं IIT के अंदर घुस गया था, but उसके बाद से I've been teaching for the last 11 years for IIT JEE, for Olympiads, for KVPY, for Foundation, and I've been lucky to have produced some wonderful ranks in IIT JEE and Olympiads. And let us continue with this session. So guys, yes, so obviously बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर आपकी रैंक कितनी आई थी, आपकी रैंक कितनी आई थी. सो पहला स्लाइड मैंने उसी के ऊपर रखा हुआ है. सो दिस इज व्हाट हाउ आई परफॉर्म्ड इन माय जेई टाइम. सो उस टाइम पे जो पैटर्न था ना आईआईटी का, दैट वाज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज टुडे. सो मैं पैटर्न पहले समझाता हूँ एंड व्हाट आई डिड, व्हाट आई कुड हैव डन, things that I did not know at that time, but I know that in today's time, and there are some things which are really important as far as the things go to improve your JEE rank. तो आज हम सब चीजें उसके बेसिस पे, सारी बातें उसके बेसिस पे करने वाले हैं, राइट? सो गाइज, सो उस टाइम पे JEE यूज्ड टू बी सब्जेक्टिव. IIT का जो एग्जाम होता था ना, इट यूज्ड टू बी सब्जेक्टिव, बट नॉट एवरीवन कुड गिव दैट सब्जेक्टिव एग्जाम. तो दे यूज्ड टू हैव अ स्क्रीनिंग का एग्जाम होता था जो कि नॉर्मली दिसंबर के अंदर होता था, wherein they would select some 10,000 students. They would select some 10,000 students. So around 10,000 बच्चे वो select करते थे, and who would write that mains का एग्जाम, जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता था उस टाइम पे. ये 10,000 बच्चे ये एग्जाम देते थे, ये JEE वाला एग्जाम देते थे 10,000 बच्चे, because there were only 4,000 seats back then. There were only 4,000 seats back then. आजकल के टाइम पे the seats have increased to 16,000, 4 times that seats. तो उस टाइम पे सिर्फ 4,000 सीटें थी and there were only 7 IITs, IIT Bombay, Delhi, Kanpur, Kharagpur, Madras, Guwahati and Roorkee. So these were the 7 IITs back then, right? So only 7,000, right? Only 4,000 seats. So I gave that screening exam in December and मेरा All India rank was 276. उस टाइम पे JEE mains नहीं होता था. JEE mains की जगह there used to be an exam called AIEEE, All India Entrance Examination for Engineering. So उसके अंदर मेरा जो All India rank था that was 436 All India. उस टाइम पे स्टेट वाइज लिस्ट भी निकलती थी because there used to be state colleges also. For example, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो चंडीगढ़ में there is a college called पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज. उस टाइम पे मेरा जो चंडीगढ़ रैंक था that was 16, तो ऑब्वियसली वो इसी के बेसिस पे निकलता था. एंड जब मैंने IIT का सब्जेक्टिव एग्जाम दिया, so this was my rank 2435, right? So a digit got added
into this rank, and this is how I perform. This is my report card, and this is in no way to show कि टेल कि अगर मैं वो चीज़ें वो कर लेता तो शायद मैं आज पढ़ा नहीं रहा होता या मैं कुछ और कर रहा होता, मैं तब भी टीचिंग ही कर रहा होता. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, राइट. सो 2435 वाज माय रैंक, एंड देयर वाज सम थिंग्स व्हिच इन हाइंडसाइट इफ आई रियलाइज कि अगर मैं शायद वो चीज़ें कर लेता था जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को आज करवाता हूँ, तो शायद हो सकता है कि ये रैंक्स, ये फिगर्स थोड़ी सी और बेटर हो जाती. तो वो चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. आज मैं डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ें जो मुझे लगता है कि शायद अगर मैं वो कर लेता अपने टाइम पे तो मेरा ये रैंक और इम्प्रूव और बेटर हो जा सकता था, राइट. सो वो आज चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज आई नो कि बहुत सारे बच्चे यहाँ के वे क्लास 8 के, क्लास 9 के, क्लास 10 के, क्लास 11 के भी बैठे हैं इस सेशन में, या बाद में देखेंगे इस सेशन को. सो यस, रैगिंग बहुत हुई थी भाई. रैगिंग बहुत होती उस टाइम पे. उस टाइम पे इतना एंटी रैगिंग सिनेरियो नहीं था. आजकल के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं वो लोग. उस टाइम पे रैगिंग का इतना, एंटी रैगिंग का इतना ज़्यादा सीन नहीं था, एंड इट यूज्ड टू बी वेरी गुड रैगिंग. सो रैगिंग आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इज अ वे टू मिक्स अप विद योर सीनियर्स, एंड दे हेल्प यू लॉट. अगर तुम अपने सीनियर्स के साथ मिक्सअप हो जाते हो, दे 4 साल बहुत तुम्हारी गाइड करते हैं, तुम्हारी गाइडेंस बनते हैं. यू कैन आस्क और पुट एनी क्वेश्चंस टू देम एंड दे विल आंसर देम इन अ ट्रू फैशन, राइट. चलो सो लेट अस गेट गोइंग. एंड अगेन ये जो सेशन है बच्चों, ये इस सेशन इज नॉट ओनली फॉर IIT JEE बट ऑल्सो फॉर द नीट एस्पिरेंट्स, बिकॉज जो मैं चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ और चीज़ें बताने वाला हूँ वो एक जेनरिक से चीज़ें हैं, एंड दैट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस जो कि इस नेचर के होते हैं. सो लेट अस गेट गोइंग बच्चों, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो देयर आर सम फैक्ट्स and there are some things जो इसके बाद में आएंगी, right. So चीज़ें नंबर 1, so this is true for all the JEE aspirants that I've ever met जिन्होंने तैयारी पहले स्टार्ट कर दी थी, ठीक है. तो हर बच्चा, जनरली सारे बच्चे नॉर्मली मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं. सो दे टेक अप मैथमेटिक्स, दे गो बियॉन्ड देयर सिलेबस, दे डू थिंग्स व्हिच आर रिलेवेंट टू JEE, व्हिच आर नॉट देयर in their normal curriculum. This is a standard thing. People start from class 8. I did not start from class 8. I started from class 10th के लास्ट में. NTSC के टाइम से मैंने थोड़ा सा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था. आई स्टार्टेड बैक देन, बट देयर आर स्टूडेंट्स जो कि मैथ्स एंड फिजिक्स पर्टिकुलरली बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं. शायद कुछ लोग केमिस्ट्री भी स्टार्ट करते हैं. सब सारी चीज़ें 8th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं. वो करने का ज़्यादा ज़रूरत हो नहीं, बिकॉज आई नो ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु स्टार्टेड फ्रॉम 8th एंड डिड नॉट क्लियर. I have seen students who started from 8th and did clear with a very good rank. I have seen students who started in class 11th and who did not clear. I have seen students who started in class 11th and did not clear, did not get as good rank. I have seen students who started in class 12th. I have seen students who started in class 12th and they got a very good rank. So there are all kind of students. So you did not compare yourself to any student, guys. First of all, stop comparing. Stop comparing. So this is the first thing that I want to give you. So stop comparing. दिस इज द फर्स्ट लर्निंग. बहुत बार ऐसा होता है कि तुम अपने साथ वाले को देखते हो या अपने भैया को देखते हो या फिर किसी और को देखते हो अपने नेबरहुड में या किसी कजन को देखते हो और सोचते हो यार उसने तो क्लास 8th के अंदर स्टार्ट कर दी थी एंड ही गॉट अ वेरी गुड रैंक, ठीक है. एंड कभी कभी ऐसा भी देखते हो कि यार उसने तो क्लास 12th में स्टार्ट किया था एंड स्टिल ही गॉट, तो मैं अभी स्टार्ट करने की जरूरत क्यों है मुझे, राइट. सो गाइज लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल ईच स्टूडेंट इज डिफरेंट. हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है. सो यू नीड नॉट एंड यू शुड नॉट कंपेयर. दिस इज द बिगेस्ट sin. If you start comparing yourself with any other person, that is the biggest sin. Because होता क्या है, because अगर तुम start comparing करना लग जाते हो तुम उसकी के रास्ते के ऊपर चलने लग जाओगे. हो सकता है मंजिल एक हो, रास्ते अलग होते हैं, और ऐसा होता है. मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो क्लास 8th में स्टार्ट कर गए थे, ऐसे बच्चे देखे हैं जो क्लास 11th में आके JEE स्टार्ट किया था और दोनों का रैंक सेम आया, दोनों का रैंक सेम आया. ये मेरे साथ बहुत होता था बच्चों, मेरे साथ बहुत होता था, बिकॉज आई यूज्ड टू बी अ वेरी स्लो लर्नर. I was and I am a very, very, very slow learner. There were people in my coaching जिनको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी या बहुत कम पढ़ते थे. अगर वो काम 1 घंटे में कर रहे हैं, मुझे उस काम को करने के 4 घंटे लगते थे, 4 घंटे लगते थे. और वो अगर वो 4 घंटे लगाते तो वो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते. बट सिंस मुझे उनको कैचअप करना था
तो मैं ऐसा नहीं करता था यार उसने तो 1 घंटा ही पढ़ा है, मैं भी 1 घंटा पढ़ूंगा। अगर मुझे उसी काम को करने के लिए, उसी चीज को समझने के लिए 4 घंटे लग रहे हैं जिसमें उसने 1 घंटे में काम किया है, तो मैं 4 घंटे लगाऊंगा। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू लर्न थिंग्स, to be confident about things. So this is what you need to understand, guys. You need to be confident about things. जितने मर्जी घंटे लगे, 4 लगे, 5 लगे, 6 लगे, 24 लगे, हो सकता है कि सामने वाले को 10 मिनट में समझ में आ जाए सब कुछ, तुम्हें 24 घंटे लगे, बट वो 24 घंटे लगाने जरूरी हैं फिर, ठीक है? So stop comparing. This is the first learning, right? So mathematics and physics will always give you selection. Will always give you selection. Mathematics और physics selection देगी. So this is the kind of percentage. अगर तुम बहुत सारे बच्चे क्लास 8 के अंदर, क्लास 9 के अंदर, क्लास 10 के अंदर स्टार्ट कर देते हैं to start doing things which are there in class 11 and 12. तो ये मोटा मोटा मैंने ना वैसे स्टार्ट्स लिखे हैं, वैसे स्टार्ट्स दिखा रहा हूँ कि क्या क्या जेई के अंदर ये जेनरिक चीजें हैं। ऐसा कि नहीं है कि 2020 का पेपर है, 2019 का पेपर है, जेनरिक मोटा मोटा कुछ ऐसा ही होता है। सो ऑलमोस्ट 35% कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 35% कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स इन 3D। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब चैप्टर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। नाउ कैलकुलस इज 32%। सो कैलकुलस के अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस आ गया, इंटीग्रल कैलकुलस आ गया। बहुत सारे बच्चे इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देते हैं क्लास 9th और 10th में। ऑब्वियसली उनको थोड़ा थोड़ा एडवांटेज तो मिलता ही है। अलजेब्रा इज ऑलमोस्ट 25% एंड 8% प्योर ट्रिग्नोमेट्री। ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है बच्चों बिकॉज बहुत बार ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है इन सभी तीनों से लिंक्ड होते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री इज लिंक्ड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इज लिंक्ड टू कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री इज आल्सो लिंक्ड टू अलजेब्रा। बट अगर हम प्योर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जिसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो ऑलमोस्ट 8% इसका रहता है। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसकी परसेंटेज सब ज्यादा, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के ओवरऑल परसेंटेज देख लें बहुत ज्यादा आ जाएगी। सो 8% इज प्योर ट्रिग्नोमेट्री जिसके अंदर और कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, राइट? एंड इफ यू टॉक अबाउट फिजिक्स, सो मैकेनिक्स इज 35%। सो बहुत सारे बच्चे आए हैं नो जो कि मोशन इन 1 लाइन, मोशन इन 2 लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन, फ्रिक्शन, लॉज ऑफ मोशन ये स्टार्ट कर देते हैं जल्दी, एंड उसको हमेशा, उन बच्चों को हमेशा एडवांटेज मिलता ही मिलता है बिकॉज ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि 11th में डायरेक्टली तो आते ही हैं। बहुत सारे चैप्टर्स 12th क्लास से भी कनेक्टेड हैं, ग्रेविटी से कनेक्टेड हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स इज कनेक्टेड टू यू नो ग्रेविटी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि 11th और 12th के इंटरमिक्स चैप्टर्स हैं। तो इफ यू नो अ कॉन्सेप्ट यू आर डन, राइट? सो लाइकवाइज हीट एंड थर्मोडायनामिक्स इज 10%, वी हैव इलेक्ट्रोस्टैट्स 18%, करंट इलेक्ट्रिसिटी EMI 20%, एंड ऑप्टिक्स जो कि एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, एक तरह से इंडिपेंडेंट चैप्टर है जो कि तुम 9th क्लास में भी पढ़ते हो, एंड उसको अगर थोड़ा सा हल्का सा और अच्छा कर लो 9th क्लास के अंदर ही तो ऑब्वियसली वो एडवांटेज मिलता है बिकॉज ऑलमोस्ट 17, मोटा मोटा 15, 16, 17% का ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स आता है। सो दिस इज व्हाट द फिजिक्स परसेंटेज इन IIT JEE। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के मोटे मोटे चैप्टर्स मैंने बता दिए हैं कि इस तरह का परसेंटेज होता है। सो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ये ऐसे 2 सब्जेक्ट्स हैं जो कि ज्यादातर बच्चों को लॉजिकल लगते हैं और मजा आता है करने का। एंड इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि मैथ्स और फिजिक्स में ना ऐसी बहुत सारी चीजें हैं क्लास 9th के अंदर और क्लास 10th के अंदर जिससे तुम 11th में रिलेट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं आती हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा नहीं आती हैं। तो दैट इज व्हाई मेनी स्टूडेंट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग with mathematics and physics and they try to do better in mathematics and physics, thinking कि हम अगर जल्दी स्टार्ट करें मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में तो हमारा JEE रैंक एनहांस होगा। और बिल्कुल होता है बिकॉज इफ यू गो बियॉन्ड, इफ यू ट्राई टू गो बियॉन्ड योर टेक्स्ट बुक्स, अगर तुम 9th क्लास में या 10th क्लास में अगर हम AP की बात करें, अगर तुम AP को ही थोड़ा सा और ऊपर उठा लेते हो और GP और HP भी पढ़ लेते हो और स्पेशल सीक्वेंसेस पढ़ लेते हो, टेलीस्कोपिंग पढ़ लेते हो, क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा और अच्छे लेवल में उठा लेते हो जो कि 11th के अंदर आता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेसिक्स अगर तुम पढ़ लेते हो, बेसिक स्ट्रेट लाइन्स पढ़ लेते हो, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होती है उसमें स्ट्रेट लाइन्स भी अगर ऐड कर देते हो क्लास 10th के अंदर ही, फिर थिंग्स लाइक यू नो सीक्वेंस सीरीज हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो तुम अगर पहले से ही पढ़ लो तो ऑब्वियसली देयर इज एन एडवांटेज। हमेशा एडवांटेज मिलता है। मुझे नहीं मिला था बिकॉज मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मैंने NTSC की जब प्रिपरेशन करा था उसके टाइम पे आई स्टार्टेड गोइंग बियॉन्ड माय टेक्स्ट बुक्स। बट अगर तुम स्टार्ट कर दो तो ऑब्वियसली देयर इज एन एडवांटेज। सो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स will give you selection definitely, but chemistry gives you rank.
केमिस्ट्री गिव्स यू रैंक। सो बच्चों, सिलेक्शन की अगर आप बात है ना, इफ यू टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन इन आईआईटी, मैथ्स और फिजिक्स अगर अच्छा है और केमिस्ट्री डिसेंट है, सिलेक्शन मिल जाएगा। मैथ्स और फिजिक्स अगर अच्छा है, केमिस्ट्री डिसेंट है, सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर इफ यू टॉकिंग अबाउट टॉप रैंक्स, इफ यू टॉकिंग अबाउट टॉप 200, टॉप 300, टॉप 500, वो सिर्फ और सिर्फ, माइंड यू, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से आएगी, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से आएगी। आई वॉज द वन हु इग्नोर्ड केमिस्ट्री। मैंने केमिस्ट्री को इग्नोर किया है, मैं ओपनली बोलता हूं, एंड दिस वाज अ काइंड ऑफ मिस्टेक बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। आई डिड नॉट हैव मच इंटरेस्ट इन फिजिक्स बिकॉज मुझे लगता था यार बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं एंड बहुत सारी इलॉजिकल चीजें होती हैं। बट माइंड यू गाइस, जितने भी बच्चे मैंने पढ़ाए हैं और टॉप 200 के अंदर दिए हैं, उनमें का फेवरेट सब्जेक्ट अल्टीमेटली केमिस्ट्री बन चुका था, बिकॉज केमिस्ट्री इज समथिंग विच विल गिव यू रैंक एंड नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। ठीक है, अगर तुम मैथमेटिक्स में अंदर जाना चाहते हो, आईएसआई में जाने का एम है, सीएमआई में जाने का एम है, मैथमेटिक्स ही पढ़ना चाहते हो, देन ओके, इट इज ओके टू वर्क ऑन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फॉर 2 years in 11th and 12th. But if you're targeting IIT JEE and if you're targeting top rank in IIT JEE, chemistry has to be your favorite subject, hands down, hands down. इसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, there's a logic involved in this, right? अब होता क्या बच्चों, एक सिनेरियो लेते हैं, let us take a scenario. एक स्टूडेंट ए है, there's a student A and there's a student B. Student A and there is a student B. Student A is very good in maths. Student A is very good in maths. Student B is weak in maths. Student B is weak in maths. Student A है बहुत अच्छा मैथ्स के अंदर, स्टूडेंट बी है बहुत बुरा है, एवरेज है या बिलो एवरेज है मैथमेटिक्स में, मान लेते हैं। अब मैं मैथमेटिक्स का देखें, एंड दिस इज समथिंग व्हिच विल आल्सो विल ट्राई टू रेसिप्रोकेट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल। ठीक है, सो सिंपल सिनेरियो। अब देखो, दोनों के दोनों बच्चे आईआईटी का एग्जाम देने गए। मान लेते हैं देयर आर टू सिनेरियोस, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2। सिनेरियो 1 इज मैथ्स का पेपर टफ आ गया, सिनेरियो 1 इज मैथ्स का पेपर टफ आ गया, एंड सिनेरियो 2 इज मैथ्स का पेपर इजी आ गया या एवरेज आ गया। इजी क्या, इजी तो आता ही नहीं कभी, एवरेज आ गया। मैथ्स का पेपर एवरेज आ गया, ठीक है, एवरेज या अबव एवरेज बोलते हैं। अब व्हाट हैपेंस इन मैथ्स टफ सिनेरियो, एक बच्चा है जो बहुत अच्छा है, देयर आर सर्टेन क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स जो कि आईआईटी जेईई में बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं, बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि इतने मुश्किल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चंस ना ये कर पाएगा ना ये कर पाएगा। अगर मैथ्स का पेपर टफ है, द टफ क्वेश्चन, द टफेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, दे विल नॉट बी अटेम्प्टेड बाय दिस एंड दिस पर्सन, दोनों से नहीं होंगे। बट अगर मैथ्स का पेपर एवरेज आ गया तो इससे तो हो जाएंगे, बट इससे नहीं होंगे, इससे तो हो जाएंगे, इससे नहीं होंगे। तो बच्चों, अगर मैथ्स का पेपर टफ आ गया, अगर ए ये है और बी ये है, इफ ए इज हेयर एंड बी इज हेयर, इफ ए इज हेयर एंड बी इज हेयर, मैथमेटिक्स अगर टफ आ गया, तो ये जो है ना, ये डिफरेंस है, ये घूम के यहां पर रह जाता है, क्योंकि टफ क्वेश्चंस इससे भी नहीं होंगे और इससे भी नहीं होंगे, तो डिफरेंस रिड्यूसेस, द डिफरेंस रिड्यूसेस, द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स, बिकॉज इट इज ऑल रिलेटिव, इट इज ऑल रिलेटिव एंड नथिंग इज एब्सोल्यूट एज फार एज जे इज कंसर्न। इनफैक्ट अगर तुम आईआईटी के अंदर भी जाते हो ना, वहां पर भी रिलेटिव मार्किंग होती है, मोस्ट ऑफ द आईआईटीज, ज्यादातर आईआईटीज के अंदर, आईआईटी के अंदर भी जाके रिलेटिव मार्किंग होती है। सो अगर तुम से आईआईटी के एग्जाम के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर किसी भी सब्जेक्ट में से 80 स्कोर कर रहे हो आउट ऑफ 100 एंड दोज आर द हाईएस्ट मार्क्स, यू विल गेट A+, यू विल गेट A+, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन आईआईटी। सो वो रिलेटिव चीज ना यहीं से शुरू हो जाती है एग्जाम के टाइम पे। सो अगर बच्चों टफ पेपर आ गया, सो जो गैप है ना, गैप बिटवीन अ गुड स्टूडेंट हु इज गुड इन मैथमेटिक्स एंड एन एवरेज स्टूडेंट, वो गैप थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज मुश्किल क्वेश्चन तो दोनों ही नहीं कर पाएंगे और आसान क्वेश्चन दोनों ही कर लेंगे, ठीक है? तो गैप रिड्यूसेस। बट व्हाट इफ मैथ्स इज एवरेज, मैथ्स इज एवरेज, तो जो पर्सन है हु इज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, ही विल स्कोर वेरी गुड। द पर्सन हु इज एवरेज और वीक इन मैथमेटिक्स, ही विल नॉट स्कोर एज गुड। तो जो डिफरेंस है, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, it creates a lot of difference. So this scenario is always welcome for the students who is very good in any one of the subjects. कोई भी पेपर अगर एवरेज आ जाता है या अबव बिलो एवरेज आ जाता है,
तो person who is very good in mathematics will obviously score good. The person who is weak in mathematics will obviously not score as good. Cut off तो obviously clear करना ही होता है, right? So these are the two scenarios. अब the same happens in chemistry, the same happens in physics. Experience बता रहा हूँ बच्चों, experience बता रहा हूँ. The probability of an average paper in chemistry is very high. The probability of a tough paper in chemistry is very less. 10 सालों में एक पेपर या 2 पेपर आते हैं हर 10 सालों में जो जिसमें केमिस्ट्री अच्छी होती है, बढ़िया होती है. 1 घंटे का टाइम लगता है केमिस्ट्री का पेपर करने में. अदरवाइज जनरली द केमिस्ट्री गेट्स ओवर इन 35 to 40 minutes. Generally the chemistry gets over in 35 to 40 minutes. So you save a lot of time in chemistry. तुम कम से कम 20 से 25 मिनट केमिस्ट्री में बचाते हो और वो 25 मिनट मैथ्स और फिजिक्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो एज पर योर वीक सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट. द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टफ पेपर इन मैथमेटिक्स इज वेरी हाई, ठीक है. 1 या 2 साल होते हैं जब मैथ्स का पेपर एवरेज होता है. नॉर्मली इट इज ऑलवेज टफ इन द सेंस नॉट टफ मतलब लेंदी. आजकल का टफ का जो डेफिनेशन है ना मैथ्स में आईआईटी में, वो टफ का मतलब लेंदी हो गया. सो लेंदी विच विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस ऐसी कि तुम्हें अप्रोक्सीमेशंस लेनी पड़ेंगी बहुत बार. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टफ पेपर इन मैथमेटिक्स इज वेरी हाई. सो अगर मैथ्स का पेपर टफ है, अब स्टूडेंट हु इज गुड इन मैथमेटिक्स एंड स्टूडेंट हु इज वीक इन मैथमेटिक्स, उसका जो गैप है ना वो बहुत कम रह जाता है. द गैप रिड्यूसेस ड्रास्टिकली इफ इट इज अ टफ पेपर इन मैथमेटिक्स. But the probability of a tough paper in chemistry is very less. If we talk about chemistry के पेपर से 2016 का ऐसा पेपर था जो टफ था, 2020 का ऐसा पेपर था जो टफ था. बट 10 सालों में 1 या 2 पेपर आते हैं. 10 सालों में बच्चों 1 या 2 पेपर आते हैं. 10 सालों में 1 या 2 पेपर आते हैं जब केमिस्ट्री मुश्किल होता है, लेंदी होता है, अदरवाइज नहीं होता. सो दैट इज वाई प्रोबेबिलिटी वाइज, मैं मैथ्स का बंदा हूं, प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिक्स की बात करूंगा. Probability wise, it is always logical. It makes sense to have a good chemistry portion. अगर हम केमिस्ट्री की परसेंटेज वाइज बात करें ना बच्चे, केमिस्ट्री की परसेंटेज वाइज तो तीनों सब्जेक्ट्स फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक 33% होते हैं ऑलमोस्ट. सो 33% एंड 33%. सो 11th 12th. सो केमिस्ट्री ओवरऑल 33 1/3 रहता है. सो इट मेक्स मोर सेंस. एंड एक पोर्शन है इनऑर्गेनिक का जिसमें ज्यादातर चीजें याद करने वाली होती हैं, चीजें रटने वाली होती हैं. तो उसको रट लो, मजा लो रटने का. सोचो कैसे रट सकते हैं. फाइंड टीचर्स who will develop your interest in chemistry. Find good teachers. और ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं. वेदांतु में बहुत सारे टीचर्स हैं, यूएस में बहुत सारे टीचर्स हैं जो केमिस्ट्री के अंदर जान डाल देते हैं. ठीक है. सो फाइंड दोस टीचर्स. इन केमिस्ट्री में पढ़ने का इंटरेस्ट बताओ एंड इट मेक्स लॉजिकल सेंस. और मैंने लॉजिकली बता दी है. मैथमेटिकल सेंस. इट मेक्स मैथमेटिकल सेंस टू हैव अ गुड केमिस्ट्री बिकॉज probability of a tough chemistry paper is very less. Probability of an average chemistry paper is very high. तो अगर average chemistry paper आता है बच्चे, a person who is very good in chemistry and there is a person who is weak in chemistry or below average in chemistry, उनका जो gap है ना, relative gap will be very high. Right? So this is one thing about mathematics, physics and chemistry. ज्यादातर बच्चे, आज भी हम बहुत सारे बच्चे ओलंपियाड स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मैथ्स और फिजिक्स स्टार्ट कर देते हैं जल्दी. दे ट्राई टू गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स और सोचते हैं कि यार केमिस्ट्री तो 11th 12th में कर लेंगे और अगर एवरेज भी रखा हमने केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स तो हम पहले से ही कर रहे हैं, स्ट्रांग हो जाएगा. गलत. सिलेक्शन दे देगा तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. बट इफ यू आर आइंग द टॉप रैंक इन IIT JEE, chemistry has to be the subject which will give you the top 200 रैंक. बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप तो मैथ्स पढ़ाते हो, आप केमिस्ट्री की पढ़ाई क्यों करते जा रहे हो. बट दिस इज द रियलिटी. फिजिक्स पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, अच्छा करो, जल्दी पढ़ो, एडवांटेज मिलेगा, बट केमिस्ट्री को भूलना नहीं है. बहुत बच्चे आज भी मुझे ऐसे मिलते हैं, सर केमिस्ट्री को एवरेज रखते हैं ना, मैथ्स और फिजिक्स पे फोकस करेंगे. भाई कुछ नहीं होने वाला. मैथ्स और फिजिक्स में हर साल
लेंदी पेपर्स, अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे पेपर्स आते हैं हर साल विद अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। और अगर कैलकुलेशन वाला पेपर आया, टफ पेपर आया, एक अच्छा बच्चा जो मैथ्स में है और फिजिक्स में, और एक एवरेज बच्चा जो मैथ्स और फिजिक्स में है, उनका जो गैप रहता है ना बहुत कम हो जाता है। इट विल नॉट गिव यू एडवांटेज, it will not give you advantage. So it makes all the more logical sense to start physics and maths early, because you can relate to most of the topics of mathematics and physics from class 8, 9, 10 जो कि 11, 12 में आते हैं। बट जैसे ही 11th में जाओ, अगर अर्ली स्टार्ट कर रहे हो केमिस्ट्री में बहुत ही बढ़िया, बट अगर लेट स्टार्ट कर रहे हो, दिस इज द सब्जेक्ट टू फोकस ऑन, दिस इज द सब्जेक्ट टू फोकस ऑन, राइट। सो अगर तुम 9th, 10th में ही केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री साथ साथ रखो, बहुत मजा आएगा, अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा व्हेन यू गेट इनटू क्लास 11th। बट अगर तुम मैथ्स और फिजिक्स में तुम ओलंपियाड्स, मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, एनएससीएस के ऊपर फोकस कर रहे हो, उसके अंदर मैथमेटिक्स ज्यादा कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ओके। बट केमिस्ट्री इज समथिंग दैट यू शुड नॉट एंड यू कैन नॉट इग्नोर इफ यू आर आइंग टॉप 200 रैंक इन IIT JEE। एंड ये एक्सपीरियंस बताता है, तुम किसी भी अगर टॉप 200 रैंकर को किसी भी साल से जानते हो, तुम्हें ये की चीज बोलेगा कि केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर आए थे, इफ नॉट ज्यादा अच्छे नंबर आए थे तीनों सब्जेक्ट्स में से। और ये होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस हैपेंस, दिस इज एक्सपीरियंस आई एम टॉकिंग अबाउट। आई मीन टीचिंग फॉर द लास्ट 11 ईयर्स, जितने भी टॉप 200 रैंक्स मेरे थ्रू आए हैं यहाँ पे IIT के अंदर गए हैं, केमिस्ट्री उनका बेस्ट सब्जेक्ट था। फेवरेट हो ना हो, बट बेस्ट सब्जेक्ट था आउट ऑफ द 3 इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स बेस्ट सब्जेक्ट था आउट ऑफ द 3। सो दिस इज द फर्स्ट लर्निंग दैट आई वांट टू गिव यू। मैंने अपने टाइम पे सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स पर ध्यान दिया था। मेरा अपना मानना यह था कि यार मैथ्स और फिजिक्स को बहुत अच्छा लेके जाएंगे, फिजिक्स से सिर्फ कट ऑफ क्लियर करेंगे और IIT में सिलेक्शन हो जाएगा। हो भी गया था सिलेक्शन, बट अगर रैंक चाहिए, उस टाइम पे जिन बच्चों के रैंक आए थे उनका केमिस्ट्री बहुत अच्छा था। और हर साल जिन बच्चों के रैंक्स आते हैं, रैंक का मतलब टॉप 200 आई एम टॉकिंग अबाउट, रैंक का मतलब 200, उन बच्चों का हमेशा केमिस्ट्री अच्छा होता है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। इट मे और मे नॉट बी देयर फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज ऑब्वियसली द चॉइस गिवन टू स्टूडेंट्स, बट मार्क्स हमेशा केमिस्ट्री में अच्छे होते हैं। So this is the first learning, guys. This is the first learning which I want to give you, right? I hope you've all understood this. Superb. Now let us move on. Let us move on to the second learning. Now, बच्चों एक और मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैंने अपने टाइम पे की थी। IIT JEE का जो प्रिपरेशन है ना 2 साल का है, कभी कभी 3 साल का। अगर तुम 9 से स्टार्ट कर रहे हो, अगर तुम 10 से स्टार्ट करो 3 साल हो जाते हैं, कभी कभी 11th 12th एंड ड्रॉप करते हो तो भी 3 साल होते हैं। सो इट्स अ लॉन्ग टाइम, इट्स अ लॉन्ग टाइम। डू नॉट मिस टेस्ट, नंबर 1, एंड बेंचमार्क योरसेल्फ एट नेशनल लेवल, एट नेशनल लेवल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अब बच्चों अगर तुम सोच रहे हो कि यार मैं 11th में स्टार्ट करूंगा प्रिपरेशन और सीधा JEE मेंस दूंगा 2 साल के बाद और वहां पर देखी जाएगी क्या होगा, नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। यू शुड नॉट बी डूइंग दैट। यू शुड नो वेयर डू यू स्टैंड एट नेशनल लेवल फ्रॉम टाइम टू टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, नंबर 1, एंड नंबर 2 इट विल गिव यू द रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्रिपरेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्रिपरेशन। कभी कभी लगता है यार कोई हम टेस्ट नहीं देते, या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और हम टॉप कर रहे हैं, हो सकता है यार वहां के बाकी बच्चे बहुत या खराब हो या अंधों में काना राजा टाइप हो तुम, हो सकता है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बाकी बच्चे इतना अच्छा नहीं कर रहे और तुम थोड़ा अच्छा कर रहे हो, टॉप कर रहे हो, बट दैट इज नॉट इनफ, दैट इज नॉट इनफ फॉर अ गुड रैंक. So that is why these national level tests, when I talk about the national level test, I'm talking about all the national examinations that happen in these 2 years, starting with KVPY. So KVPY 11th and 12th, starting with NSEC, NSEP, NSEA, and if you're a bio student, NSEB also. So these are the kind of examination which every topper gives. Every topper give these examinations. So अगर तुम ये एग्जाम्स दे रहे हो तो तुम्हें अपना लेवल टाइम टू टाइम पता चल रहा है, दैट वेयर डू यू स्टैंड. कभी कभी होता है कि मैं अपने इंस्टीट्यूट में टॉप कर रहा हूं या टॉप 5 में आ रहा हूं, बट हो सकता है यार उसमें इतना कंपटीशन ना हो. सो हाउ डू यू नो वेयर डू यू स्टैंड एट नेशनल लेवल? तो ऐसा तो गलत स्ट्रैटेजी हो जाएगा कि तुमने कोई भी एक टेस्ट नहीं दिया 2 साल और सीधा जेई मेंस दिया और जेई मेंस में तुम्हारा लाखों में रैंक आ गया. ऐसा होता है बहुत बार.
बहुत बार होता है। तुम अपने इंस्टीट्यूट में टॉप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ट्यूशंस में या जहां भी पढ़ रहे हो तुम, बट सीधा जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हो सीधा 12th में जाके, और वहां पर एकदम से 50,000 रैंक आ गई यार, और तुम सोचो यार मैं इंस्टीट्यूट में तो टॉप 5 में आता था, ये क्या हो गया 50,000, 1 लाख रैंक। तो दैट इज वाई दीज टेस्ट make a lot of difference to your confidence level and gives you the aina, the reflection of where you stand at national level from time to time. So these are the kind of examinations, include also pre-RMO. हालांकि RMO और INMO के बाद से जो मैथमेटिक्स है उसका सिलेबस जेई से हट जाता है, बट प्री RMO तक मोस्टली सारे बच्चे देते हैं. So these are the kind of examinations which every topper gives. So you know where do you stand with respect to the other toppers across India, because ultimately competition तुम्हारे ट्यूशन के बच्चों से नहीं है, तुम्हारी कोचिंग के बच्चों से नहीं है. अल्टीमेटली जो कंपटीशन है दैट इज पूरे इंडिया से, और पूरे इंडिया से दीज आर द बेंचमार्क टेस्ट्स. सो 11th का KVPY मिस नहीं करना है अगर तुम क्लास 11th में जाओगे या जा रहे हो. 12th का KVPY मिस नहीं करना है. NSEC, NSEP जो ओलंपियाड्स है, नेशनल ओलंपियाड्स है, ये मिस नहीं करने हैं. प्री RMO मैथ्स का ओलंपियाड है, ये कोशिश करो मिस ना करो, बिकॉज ये तुम्हें आईना दिखाएगा. हो सकता है कि तुम्हें लगे यार मेरा केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, बट NSEC दिया और यार बहुत कम मार्क्स आए, जितना कट ऑफ था. ऑब्वियसली 11th में यू माइट नॉट बी एबल टू रीच द कट ऑफ, बिकॉज 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है इन एग्जामिनेशंस के अंदर, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है यार कि कट ऑफ 175 है और मेरे 150 आ रहे हैं 11th के अंदर ही. इसका मतलब यार देयर इज अ वेरी लेस गैप व्हिच आई कैन कवर इन क्लास 12th. बट अगर 175 कट ऑफ है, तुम्हारे 50 नंबर आ रहे हैं, दैट मीन्स यार तुम्हें लगता है तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी है बिकॉज यूर स्कोरिंग वेल इन योर कोचिंग सेंटर, पर एक्चुअली में अच्छी नहीं है. तो यू नीड टू चेंज, यू नीड टू डू थिंग्स. सो दीज आर द एग्जामिनेशंस जो तुम्हें आईना दिखाएंगे. तुम्हारे कोचिंग के जो पेपर्स है ना, उन पे डिपेंडेंट मत रहो, बिकॉज वहां पर हो सकता है कि तुम्हारा रैंक अच्छा है बट बेंचमार्किंग ना हो रही हो. बिकॉज हम यहाँ पर वेदांतु में क्या करते हैं, वेदांतु में जो भी हम टेस्ट देते हैं, मोस्टली जो अच्छे टेस्ट होते हैं, बेंचमार्क टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट होते हैं जो कि हमारे सारे टॉपर्स ने पिछले ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5 years 6 years दिए हुए हैं. सो वी नो जो बच्चा इस टाइम पे वो टेस्ट दे रहा है, लास्ट ईयर टॉपर ने उसके इतने मार्क्स आए थे इस टेस्ट के अंदर, उससे पिछले साल के टॉपर के इतने मार्क्स आए थे. तो वी नो वेयर डज द स्टाइल स्टैंड. बट इफ यू आर नॉट बेंचमार्किंग योरसेल्फ and are waiting for 2 years and directly giving JEE mains exam without giving any national examination, तुम्हें वो पता नहीं लगेगा. So अगर मेरा 11th के अंदर NSE में NSEC या NSEP के अंदर, NSE के अंदर A के अंदर 50 नंबर आए हैं, while the cut off is say 175 or 160 for that matter, that means there is a lot of gap I need to cover up. That means मेरा प्रिपरेशन और जो मेरा मोड है और जितना मैं पढ़ रहा हूं वो काफी नहीं है. मुझे और करना है, मुझे और बढ़ना है, मुझे चेंजेस करनी है अपने अपने स्टडी पैटर्न में, बिकॉज अभी जो चल रहा है वहां पर तो मैं कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा. अगर 11th में KVPY का जो भी, अगर तो इफ यू गेट सिलेक्टेड इन KVPY, वेरी गुड, यू आर अमंग द टॉप 2000 1500 स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री. दैट मींस जेईई के अंदर भी पक्का से रैंक आएगा तुम्हारा. बट अगर KVPY और तुम्हारे कट ऑफ के अंदर बहुत ज्यादा कट ऑफ और तुम्हारे मार्क्स के अंदर बहुत ज्यादा गैप है, दैट मींस बॉस यू नीड टू चेंज समथिंग, सम पैटर्न यू नीड टू चेंज. कुछ ना कुछ चेंज करना जरूरी है, बिकॉज नेशनल लेवल पे यू आर नॉट स्टैंडिंग एनीवेयर. सो बेंचमार्क योरसेल्फ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका बेंचमार्किंग का ये नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस हैं, जो कि 11th और 12th की जर्नी में तुम्हें मिलेंगे और टाइमली तुम्हें आईना दिखाएंगे कि बॉस दिस इज वेयर यू स्टैंड एट द नेशनल लेवल. वेरी इंपॉर्टेंट. सो डू नॉट मिस दीज बेंचमार्क एग्जामिनेशन. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा तो फोकस ही जेईई है. तो बच्चों जेईई का जो जर्नी है ना, 2 साल का लंबा जर्नी है. हाउ डू यू नो कि जो प्रिपरेशन चल रहा है वो अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है? So these are the kind of examination. You cannot depend on your coaching examination tests. हर टॉपर, every topper across India give these examinations. And अगर तुम यहाँ पर अच्छा कर रहे हो, कट ऑफ क्लियर हो गई तो बहुत ही अच्छा है. बट अगर नहीं भी हो रही, अगर तुम यू आर नियर द कट ऑफ, वेरी नियर टू द कट ऑफ, ज्यादा गैप नहीं है, देन यू नो कि थोड़े से और एफर्ट से तुम आगे पहुंच सकते हो. बट अगर वो गैप ही बहुत ज्यादा है, देन यू नो बॉस समथिंग इज रॉन्ग. कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है. मेरा कोचिंग में टॉप 5 में रैंक आ रहा है, बट यहां पर तो यार मैं स्टैंड ही नहीं कर रहा कहीं. तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थिंग
which is wrong. No, बच्चे, I did not have computer science. I had physical education in class 12th, जिसमें पढ़ना नहीं पड़ता था, ठीक है. But we are talking about the national benchmarking. So benchmark yourself, and this is one of the mistakes that I made. वो mistake नहीं थी, but जहाँ पे मैं पढ़ता था या जहाँ पर कोचिंग होती थी, वहाँ पर बहुत कम लोगों को पता होता था कि इन एग्जामिनेशंस के बारे में, और टीचर्स भी नहीं ज़्यादा बताते थे. KVPY आई मिस्ड. आई डिड नॉट गिव NSCC, आई डिड नॉट गिव NSCP, ए भी नहीं दिया था मैंने. प्री RMO मैथ्स दिया था, आई क्वालिफाइड. उस टाइम पे RMO होता था, तो आई क्वालिफाइड स्टेज 1. बट दीज आर द एग्जामिनेशंस विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस बिकॉज यू नीड टू बेंचमार्क योरसेल्फ, राइट. तो इसका कोई प्रिपरेशन नहीं होता. द गुड पार्ट ऑफ दीज NSCC, NSCPs कि इनका जो सिलेबस है ना, ये जेई का वाला ही सिलेबस है मोर और लेस. NSEC, NSEP का जो फर्स्ट राउंड का जो सिलेबस होता है वो जेई का ही सिलेबस होता है. तो कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी होती. जस्ट दैट अगर तुम ये एग्जाम दे रहे हो और तुम अच्छा स्कोर कर रहे हो, और अगर कट ऑफ से बहुत कम गैप है, इसका मतलब तुम्हारा जेई प्रिपरेशन अच्छा जा रहा है. सो दिस इज द काइंड ऑफ बेंचमार्किंग, आईना, रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्रिपरेशन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ये एग्जाम सारे मिस कर दो, पहला एग्जाम जो नेशनल एग्जामिनेशन सीधा जेई मेंस दो और वहां पर जाके एकदम से खराब हो जाए. और जेई मेंस और एडवांस के बीच में तो ज़्यादातर केस में टाइम ही नहीं होता. तो अगर जेई मेंस नहीं हुआ तो तुम्हें उस टाइम पर रियलाइज होगा, यार फरवरी में जेई मेंस या जनवरी में जेई मेंस हुआ, इसमें तो यार मार्क्स ही नहीं आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ थी मेरे प्रिपरेशन के अंदर. अब जेई एडवांस तो 4 महीने बाद है, तो गैप ही नहीं बचा. देयर इज नो टाइम टू इंप्रूव योरसेल्फ. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? समझ में आया? ठीक है. सो बच्चों, दिस इज समथिंग विच यू शुड नॉट नेवर ever miss. So benchmark yourself, and the best way is give KVPY national Olympiads. I'm talking about when I say Olympiads, I'm talking about the national Olympiads. ठीक है. बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी ओलंपियाड लेते हैं. I'm talking about the national Olympiads जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है, राइट. सो NSCC, NSCP, NSEA, राइट. चलो. So this is the second thing which I wanted to tell you. This is one mistake which I made in my JEE preparation life, and I do not want, and I encourage all the students, जो भी मेरे अपने बच्चे हैं जाकि YouTube में मैं lectures लेता हूँ, I always encourage these kind of examinations because these are the benchmark examinations which you should never ever miss. ठीक है. तो बच्चों, I hope पहला चीज एंड दूसरा चीज दोनों चीजें समझ में आ गई. अगर समझ में आ गई फटाफट से लाइक कर दो अगर मजा आ रहा है, बिकॉज तीसरी चीज और इंपॉर्टेंट होने वाली है और मजेदार होने वाली है. फटाफट से वीडियो लाइक कर दो अगर चीजें अभी तक समझ में आ चुकी हैं, बिकॉज तीसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं. द थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज रिविजन. बच्चों, वी आर ऑल ह्यूमंस. हम सब ह्यूमंस हैं. हम सब की अपनी रिटेंशन कैपेसिटी है. हम सब की अपनी रिटेंशन कैपेसिटी. सो दिस is one thing which differentiates topper from someone who is not topping but just clearing, or someone who is not even clearing IIT JEE examination. Revision of each and everything that you have studied at least 5 times. At least मतलब कम से कम 5 बार रिवीजन करना ही करना है. कम से कम 5 बार रिवीजन. And this is something which I make sure for all my students that they do. क्या रिवीजन की चीजें होती हैं, कब करनी होती हैं. तो एक बात तो जब हम चीजें कर रहे हो, तो व्हेन आई से रिवीजन आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास एक्सरसाइज. क्लास एक्सरसाइज मतलब जो भी तुम्हारे कोचिंग के अंदर अच्छा मटेरियल मिलता है उसको, कोचिंग के अंदर अच्छा क्लास एक्सरसाइज, नोट्स. दिस इंक्लूड्स गुड एक्सरसाइजेज ऑफ JEE लेवल. Good exercises of JEE level. So बच्चों, revision at least 5 times. ठीक है. When I say revision, इसका मतलब सब कुछ. इसका मतलब जहाँ पे भी तुम जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, जहाँ पे भी तुम पढ़ रहे हो, वहाँ पर आई एम वेरी श्योर कि कुछ ना कुछ कोचिंग मटेरियल मिलता होगा. उसमें कुछ बेसिक एक्सरसाइज होती होगी, कुछ अच्छी JEE लेवल वाली एक्सरसाइजेज होती होंगी. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट JEE लेवल वाली एक्सरसाइज, बेसिक एक्सरसाइज. कम से कम 5 बार रिविजन ओवर द पीरियड ऑफ 2 years होना ही चाहिए. कैसे अब बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डूइंग, इफ सपोज यू आर इन क्लास 11th एंड वी आर डूइंग अ चैप्टर कॉल्ड से सीक्वेंस एंड सीरीज. वी आर डूइंग अ चैप्टर कॉल्ड सीक्वेंस एंड सीरीज. ऑलराइट. सो फर्स्ट
First revision is when we are doing. So this is not actually revision, this is doing. This is first time you are completing all the exercises. Make sure that you are completing all the exercises. So that is the first revision. So I'm including first doing also in revision. Second is after chapter completion. Chapter completion or before chapter test. ठीक है, एक बात तो जब तुम कर रहे हो दैट इज डूइंग. सेकेंड थिंग, सेकेंड रिवीजन कब आएगी या सेकेंड बार उसको कब गो थ्रू करोगे? एक बार चैप्टर खत्म हो गया, किसी भी संडे बैठ जाओ और एक बार दोबारा से गो थ्रू करो all your notes, all the important points, all the exercises, and before your chapter test. I'm very sure जहाँ भी तुम पढ़ते हो हर चैप्टर का टेस्ट होता है, हर चैप्टर का टेस्ट होता है जहाँ भी तुम पढ़ रहे हो, एक अच्छा जेई लेवल वाला टेस्ट. जब भी जेई वाला टेस्ट हो रहा है उससे पहले दोबारा से रिवीजन कर रहे हो. थर्ड इज व्हेन यू कंप्लीट class 11 syllabi. So before starting class 12, when you complete class 11 syllabi, go through all the exercises again at least once. When you complete class 11 जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे बैचेस जो हम पढ़ा रहे थे उनका क्लास 11 हमने पहले ही कंप्लीट दिसंबर में कंप्लीट करवा दिया. सो वी गेव देम 3 months ऑफ रिवीजन और उनको बोला था, सब बच्चों को बोला था कि 3 महीनों के अंदर जितने भी पेंडिंग एक्सरसाइजेज हैं सबको कंप्लीट करो और अगर नहीं पेंडिंग है दोबारा से करो. Very important. So when you complete class 11th, fourth is when you complete class 12th. जब क्लास 12th कंप्लीट करोगे, क्योंकि क्लास 12th का जो सिलेबस है ना दैट इज छोटा है एज कंपेयर टू क्लास 11. सो अगर तुम अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 12th का सिलेबस गेट्स ओवर बाय सितंबर, मैक्सिमम बाय अक्टूबर. सितंबर के अंदर क्लास 12th का सिलेबस कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है अच्छे बच्चों का. तो क्लास सितंबर के बाद एक बार दोबारा 11th के जो भी सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर का नोट्स, एक्सरसाइजेस, जो भी तुमने पहले की थी चीजें दोबारा से रिवाइज करनी है. आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम एक्सरसाइज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यू मटेरियल, वो अलग करोगे तुम, वो अलग करोगे. आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सरसाइजेस जो तुम्हारा कोचिंग मटेरियल देता है, जो कोचिंग की एक्सरसाइजेस होती हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं. सिर्फ नोट्स जो तुमने बनाए हैं, क्लास नोट्स, एंड जो एक्सरसाइज तुमने की हैं पहली बार, उनको रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूं. नेक्स्ट इज बिफोर जेईई मेंस. वंस अगेन before JEE Mains, and sixth before advance. So these are the 6 revision rounds. These are the 6 revision rounds. अगर ये कर ले तो बच्चे और कुछ नहीं करते, और अगर कोचिंग मटेरियल अच्छा है, अच्छे लेवल का है, जेई टाइप का है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, इसी से बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा. आई एम गारंटिंग यू, provided you've completed each and every question, you've analyzed all the tests, you've completed all the class notes, and things are there on the. देखो जेई का एग्जाम जो था ना, back in 90s it used to be an exam for the students who were very intelligent. Back in 90s it used to be an exam for the students who were very intelligent, because उस टाइम पे ना जेई नया आया था, नए कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे थे. आज के टाइम पे ना, इस टाइम पे, एंड बिलीव मी गाइस, आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई एम टीचिंग फॉर द लास्ट 11-12 years, इस टाइम पे जेई इज सैचुरेटेड. आज के टाइम पे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो अच्छे बच्चे को परेशान करे. ही मे नॉट बी एबल टू फाइंड द आंसर इन द एग्जाम, बट घर आके वो एग्जाम का आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर जरूर निकल सकता. ठीक है. सो आज के टाइम पे इट इज नॉट द गेम ऑफ इंटेलिजेंशिया क्वेश्चन. आज के टाइम पे इट इज द गेम ऑफ हार्ड वर्क. It is not the game of talent. It is the game of working hard, doing things repeatedly so that you're able to retain things. अगर जो चीजें की हुई है ना, चाहे कम की हैं, उन्हीं को अच्छी तरह कर लो और कोई मिस्टेक ना करो. Make no mistake in the examinations. You are through. You are through. You do not need to do anything else. कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. There is no need. जस्ट दैट कि जो तुमने पहले पढ़ा हुआ है, जो गलतियां पहले की हुई हैं एग्जामिनेशंस के अंदर या तुम्हारे कोचिंग के एग्जामिनेशंस के अंदर, वो बस दोबारा से ना करो एंड यू आर डन. कोई एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं है. ऑब्वियसली एक्स्ट्रा बुक ऑलवेज हेल्प्स. अगर टाइम है तो जरूर करो. बुक्स ऑब्वियसली हर जगह कुछ ना कुछ बुक्स रेफर की जाती हैं, वो करो. बट अगर तुम अच्छा मटेरियल है उसी को 5 बार रिवाइज कर लेते हो, 6 बार तो मैंने ये, दिस इज द आइडियल सिनेरियो, ये तो परफेक्ट सिनेरियो है. बट अगर तुम 5 बार भी रिवाइज कर लेते हो एक चीज को, यू आर थ्रू. माइंड
Mind it, you are through. There is no need to do anything apart from this, guys. Anything apart from this. So revision at least 5 times. At least 5 times is the key. I did not revise. I did not revise. मुझे लगता था कि यार मैं एक चीज़ कर लेता हूँ ना, उसके बाद मुझे बहुत बोरिंग लगती थी चीज़ें, कि बार बार मैं सेम चीज़ क्यों करता हूँ. बट अगेन मैंने जब पढ़ाना शुरू किया है और जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैं, दिस इज समथिंग विच आई बीन डूइंग विद ऑल माई स्टूडेंट्स रिपीटेडली ईयर आफ्टर ईयर, इवन इफ दे आर टॉपर्स, इवन इफ दे टॉप, even if they're topping the entire institute, I make sure they revise at least 6 times. I make sure they revise at least 6 times. and इसके अलग benefits होते हैं. उसके benefits ये होते हैं कि जो गलतियां होती हैं ना, वो रुक जाती हैं अपने आप. Silly mistakes बंद हो जाती हैं. चीजें जब दिमाग में नहीं आती, ऐसा होता है ना, एक क्वेश्चन किया हुआ है यार, वो दिमाग में नहीं आ रहा, वो वाला सिनेरियो खत्म हो जाता है. तो अगर तुमने कोई चीज पहले टच की है, अगर तुम 6 बार रिवाइज कर लेते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज तुम्हारे दिमाग में ना आए. कोई चीज तुमने नहीं की, उसका क्वेश्चन आ गया, वो छोड़ दोगे तुम, या हो सकता है कि वो तुम्हें ना आए, बट ऐसा बहुत कम है. बस जेई अब सैचुरेट हो चुका है. अब नए क्वेश्चन नहीं आते जेई के अंदर. क्वेश्चन नहीं होते हैं, बट वो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से मर्ज करके दोबारा आ जाते हैं, घुमा फिरा के. एक नया कॉन्सेप्ट आउट ऑफ द ब्लू कुछ कहीं से आए, वैसा पॉसिबल नहीं है जेई में, और होता भी नहीं है. ऐसा हो भी नहीं रहा, पिछले 10 सालों से तो नहीं हो रहा, बिकॉज इट हैज सैचुरेटेड. पिछले 40 सालों से वो सेम सिलेबाई पे टेस्ट ले रहे हैं. इमेजिन दैट. पिछले 40 years, past 40 years, they're taking the test from the same syllabi. Now the questions are saturated, boss. There are no new questions which get formed. New questions का मतलब है कैलकुलेशन लंबा. न्यू क्वेश्चंस का लंबा है. क्वेश्चंस का मतलब है कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट को मर्ज करके एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया. कोई आउट ऑफ द ब्लू नया कॉन्सेप्ट नहीं आता कभी भी, राइट. एंड इस चीज का फायदा उठाओ. इस चीज का फायदा है रिविजन एटलीस्ट 5 times. कम से कम 5 बार रिवाइज करो. आई डिड नॉट डू इट माई सेल्फ. मैंने 1 या 2 बार रिवाइज किया होगा. मुझे बहुत बोरिंग लगता था. एंड दिस एक्टिविटी कैन बिकम बोरिंग, बट दिस इज समथिंग इवन द टॉपर्स शुड डू. So if you are aiming for top 200 ranks, guys, revision of things at least 5 times, this will eliminate all your silly mistakes, mind you. सभी की सभी silly mistakes को हटा देगा, तुम्हारी जिंदगी से भुला देगा. And this is something you cannot ever ignore. So this was the third thing which I wanted to tell you. So these are the 3 big mistakes which I think अगर मैं ये चीजें कर लेता तो शायद I could have better my rank. राइट. बट आई एम मेकिंग श्योर एज अ टीचर ये चीजें मैं स्टूडेंट्स को बताऊं और स्टूडेंट्स को समझाऊं, एंड मेक श्योर माय स्टूडेंट्स डू ऑल दीज 3 थिंग्स सो दैट they perform at the top level, right? So this is these are the 3 things, guys. So एक saying है ना, life is too short to learn from your own mistakes. जिंदगी अपनी गलतियों से सीखने के लिए बहुत छोटी है. So try to learn from the mistakes of others. So smart people learn from their mistakes, but the real sharp ones learn from the mistakes of others. So this is what you need to do, and this is what you need to learn, guys. हम क्या कर सकते हैं तुम्हारी मेहनत तुम्हारे लिए इसके अंदर? तो हम बच्चों, for the first time, Vedanta Olympiad School is launching the batches for JEE and NEET, and again you all have a chance to learn and study from these amazing teachers, amazing set of teachers for JEE and NEET. So this is so we are conducting the test. We have already conducted one test which was on 24th of January. We've conducted a test which was on 24th of January, and we'll be conducting another test on 31st of January. So we have shortlisted some students here. We'll be shortlisting some students from this test. We'll be merging them. We'll be taking the interviews, and if we think you have the potential to perform and then get into top 100, top 200 in JEE as well as NEET for 2023, we will be giving you a call and we will be enrolling you into those batches. The enrollment fees is very negligible, right? It is more about the learning, and we are making sure कि उस बैच के अंदर सारे के सारे टॉपर्स ही हैं, so that there are common synergies, common अच्छा environment, good environment and good competition, so that we can being in different part of the countries, we can learn online, we can have the same sort of competition which used to happen in offline, and then we're trying our best to give you that sort of scenario, right? So test link is this, guys. You can take the screenshot, you can register yourself. The test registration is free of cost. There's no fees for test registration. Give your test, give your best shot. We'll be selecting top few students, we'll taking their interviews, and we'll putting them into those batches.
This is for NEET, guys. So we have a very good dream team for NEET as well. So the test is on 31st of January. The test batch is starting from 8th of February, and this is the awesome set of faculty we are having in Vedanta Olympiad School. We'll be teaching you for NEET and JEE, right? So guys, this is the test link. This is the test link for all the students in class 11, in class 10th now, and moving into class 11th. This is the test link. You can all go through this test link. रजिस्टर करो अपने आप को, टेस्ट दो, बढ़िया से टेस्ट दो. हम सेलेक्ट करेंगे कुछ बच्चे, उनका इंटरव्यू लेंगे, एंड इफ वी थिंक you have that spark, we will take you into our batches, right? And then we'll obviously that aim is top 200 rank is the aim. On that note, guys, I hope you enjoyed the session. I would again end this session with this quote, that life is too short to learn from your own mistakes. Guys, if you have any other question which you were asking in the comment box, please let me know. After the session gets over, you can put that question into the comment box, and I will surely answer that before I go to sleep today, right? All right, on that note, let me say goodbye. All the best. Have fun. Keep learning. Bye.